Hello students, it is the syllabus of applied mathematics of class 11th. The code for this is 241. Now there will be one paper of 3 hours and maximum marks will be 80. Total period 240, 35 minutes each. Okay, so there are 8 units. First unit consists of numbers, quantification and numerical application for 9 marks, algebra for 10 marks, mathematical reasoning 6 marks, calculus 10 marks, probability 10 marks, descriptive statistics 12 marks, basic of basics of financial mathematics 18 marks, and coordinate geometry that is of 5 marks. So total will be 80 and 20 marks for internal assessment. So today we'll start mathematical reasoning, that is unit 3. So here you see mathematical acceptable statements, connecting word phrases, mathematical statement, consolidating the understanding of if and only if, that is necessary and sufficient condition, implies and or, implied by and or, there exists, and their use through variety of examples related to real life and mathematics. Then here you have problems based on logical reasoning, that is coding, decoding, odd man out, blood relation and syllogism etc. सो जैसा कि अभी आपको पता है एनसीईआरटी ने कोई बुक अभी पब्लिश नहीं की है मार्केट में। इस पेपर की कोड 241 11th क्लास की कोई भी अभी बुक नहीं आई है। तो आपको जो है सिलेबस को फॉलो करना है, किसी प्राइवेट ऑथर की बुक को फॉलो आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक या दो बुक प्राइवेट ऑथर्स की अभी अवेलेबल हैं और उस पर जो है सिलेबस से वो काफ़ी अलग भी हैं। तो आप एनसीईआरटी का बुक का वेट कीजिए और अभी आप जो है सिलेबस से फॉलो करेंगे, ठीक है। सो हियर यू विल सी ए सेंटेंस, in 2003 the president of India was a woman. Okay, so no doubt you can say it is true, this sentence is true. Here also, an elephant weighs more than a human being. No doubt it is true. So a sentence is called a mathematically acceptable statement if it is either true or false, but not both. So whenever we mention a statement here, it is mathematically acceptable. Okay, तो वो sentences जिनका जवाब ट्रू या फॉल्स में दिया जा सके, तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट है। नाउ हियर यू सी टुमारो इज फ्राइडे, तो इट इज नॉट क्लियर विच टुमारो, so it is not a statement. Here also, how beautiful, so it is also not a statement. Open the door, imperative sentence, so it is not a statement, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दिया जा सकता। सिमिलरली वेयर आर यू गोइंग, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट, 8 is less than 6, so it is statement. Every set is a finite set, it may be true or false, so it is false.
and it is a statement. The sun is a star, it is true, so it is a statement. Mathematics is fun. Now mathematics may be fun for some persons, for it is very difficult, so it may be true or false. Clear? But it is a statement. Clear? Now here, there is no rain without clouds, so it is true, so it is a statement. How far is Chennai from here? Its answer cannot be given as true or false. Clear? So it is not an statement. तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब ट्रू या फॉल्स में दिया जा सके. नेक्स्ट वी विल स्टडी negation of a statement. That is, denial of a statement is called the negation of the statement. Suppose we have, so P is the statement, New Delhi is a city. P is the statement, New Delhi is a city. तो इसका negation क्या हो जाएगा? We will show by this. Negate of P is the statement that New Delhi is not a city. तो यहाँ पर आपने not लगाया. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज ए सिटी. तो इस तरह से नेगेशन हम कर सकते हैं. डेफिनेशन यहां पर है, आप ध्यान से देखिए. इफ पी इज ए स्टेटमेंट देन नेगेशन ऑफ पी इज ए स्टेटमेंट एंड इज डिनोटेड बाय दिस. और इसको हम क्या कहेंगे? नॉट पी. नेगेटिव ऑफ पी इज कॉल्ड नॉट पी. सो व्हाइल फॉर्मिंग नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट फ्रेज लाइक इट इज नॉट द केस और इट इज फॉल्स दैट आर ऑल्सो यूज्ड. तो आपने यहां पर देखा कि नॉट का यूज कर सकते हैं हम, या हम लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट, और आप ये भी लिख सकते हैं इट इज नॉट द केस. तो यू कैन राइट हियर इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस दैट दिल्ली इज ए सिटी. तो इस तरह से भी आप नेगेट कर सकते हैं इट इज नॉट द केस का यूज करके. नेक्स्ट डेफिनेशन. A compound statement is a statement which is made up of two or more statements. So दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जाता है तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, और ईच स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट. नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स मैनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर obtained by combining one or more statements using some connecting words like and, or, etc. So and or, these are connecting words. Okay, let us take examples. Suppose we have P is a statement, there is something wrong with the bulb or with the wiring. तो यहां पर ये और जो है ये कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज हुआ है, और इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं. कंपोनेंट्स इसके आ गए. फर्स्ट कंपोनेंट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड, तो Q इज द स्टेटमेंट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, एंड R कंपोनेंट कोई दूसरी स्टेटमेंट है विद द और विद द वायरिंग, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग. तो ये दो स्टेटमेंट अलग अलग हमने लिखी, ये कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएंगी. तो P के कंपोनेंट है Q एंड R, और ये और यहां पर कनेक्टिंग वर्ड है. यहां पर देखिएगा, सपोज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. P और Q ये दो स्टेटमेंट है. P स्टेटमेंट है 7 इज एन ऑड नंबर, Q स्टेटमेंट है 7 इज ए प्राइम नंबर. ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों को एंड से कंबाइन अगर हम करेंगे तो देखिएगा कैसे. R स्टेटमेंट
7 इज बोथ ऑड एंड प्राइम। तो यहां पर ये जो एंड है ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो एंड से यहां पर दो स्टेटमेंट्स पी और क्यू को कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट आर बनाई है। द वर्ड एंड, let us look at a compound statement with and. P is the statement a point occupies a position and its location can be determined. तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? Q, a point occupies a position. R, its location can be determined. So these are the components of the compound statement P. इनको Q और R कह दिया है। यहां पर and connecting word है, इससे इन दोनों को जोड़ा गया है कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए। इसी तरह से यहां पर एक स्टेटमेंट और देखते हैं। P इज द स्टेटमेंट 42 इज डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 7। तो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसको तीन पार्ट में हम अलग अलग लिख सकते हैं, Q, R और S। Q is the statement 42 is divisible by 5. Similarly, we can write R is the statement 42 is divisible by 6, and we can write here 42 is divisible by 7. So S is the statement that 42 is divisible by 7. तो ये यहाँ पर कंबाइंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट पी थी, उसको तीन अलग अलग पार्ट में ऐसे लिख लिया। ओके, तो कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज ट्रू इफ ऑल इट्स कंपोनेंट आर ट्रू। कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब उसके सारे कंपोनेंट ट्रू होंगे। और कंपोनेंट एंड जो है वो फॉल्स होगी यदि उनमें से एक भी स्टेटमेंट या दोनों फॉल्स हैं। तो ये इसका एक रूल है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे एंड के लिए ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल से आपको समझाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट P है और दूसरी स्टेटमेंट Q है, और यहां पर P एंड Q, एंड को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो आप इसको आसान तरीका आपको बताते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। तो ऐसा लिखने में आपको आसानी होगी। तो आप एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, तो 0 इंटू 0, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 1। तो आपने देखा कि P एंड Q वैलिड है, ट्रू है, जब दोनों स्टेटमेंट अलग अलग वैलिड हैं। ओके, तो आप 0 को फॉल्स से रिप्लेस कर सकते हैं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहां पर फॉल्स ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और यहां पर ये ट्रू, क्यू फॉल्स है, तो ये यहां पर फॉल्स आएगा। और यहां पर दोनों ट्रू हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से वैलिडिटी चेक करते हैं कि कोई स्टेटमेंट कंबाइन कब ट्रू होगी। तो ये रूल को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है, आप इसको याद रखेंगे। और P एंड Q इसको कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। P is the statement a mixture of alcohol and water can be separated by chemical methods। तो यहां पर जो एंड है वो एल्कोहल और वाटर को कंबाइन कर रहा है, एल्कोहल और वाटर के लिए है। ये दो सेंटेंस यहां पर कंबाइन नहीं हो रहे। सो डू नॉट थिंक दैट स्टेटमेंट विद एंड इज ऑलवेज ए कंपाउंड स्टेटमेंट एज शोन इन द अबव एग्जांपल। यहां पर एंड जो है कनेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा, ये एल्कोहल और वाटर को कंबाइन कर रहा है, दो पदार्थ हैं एल्कोहल एंड वाटर, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। तो ये रिमार्क है कि जब भी एंड आए तो आप ये ना सोचें कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव
the word or. So let us consider one statement P. Two lines in a plane either intersect at one point or they are parallel. तो यहाँ पर कनेक्टिव और है, और इसको अलग अलग आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं Q is the statement two lines in a plane either intersect at one point, and next statement R will be two lines are parallel. Okay, so P और Q यहाँ पर और से, ये दो कंपोनेंट हैं इसके अलग अलग। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं स्टेटमेंट, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद ए थाली इन ए रेस्टोरेंट। तो इसका मतलब है कि आइसक्रीम और पेप्सी, थाली और पेप्सी थाली के साथ अवेलेबल है। अगर आप थाली लेंगे तो आप आइसक्रीम ले सकते हैं या पेप्सी ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते, तो एक को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पर जो और यूज हुआ है वो एक्सक्लूसिव और की तरह यूज हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक्सक्लूसिव और का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। तो यहां पर जो और यूज हुआ है वो इंक्लूसिव और की तरह यूज हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट के पास अगर बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, ओके, दोनों में से एक भी इंक्लूडेड है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, तो वो स्टूडेंट एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ले सकता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी इंक्लूड है या केमिस्ट्री इंक्लूड है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को इंक्लूसिव और कहेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये बहुत ध्यान से समझनी है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और वर्ड का वैलिडिटी चेक करेंगे ट्रुथ के लिए। सो ए कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और इज ट्रू व्हेन वन कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू और बोथ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसको देखेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाकर, जैसे अभी हमने एंड का बनाया था, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हम ले लेते हैं यहां पर P Q, और P और Q के लिए ये नोटेशन यूज होगा, 0 हम लेंगे फॉल्स के लिए और 1 लेंगे हम ट्रू के लिए। सबसे आसान तरीका है, आप यहां पर लिखिए 0 1 और यहां पर 2 बार 0 और 2 बार 1, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब आप यहां पर P और Q का मतलब यहां पर एडिशन लेके चलेंगे, तो 0 + 0 यहां पर ये 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। ये बूलियन अलजेब्रा में ऐसा ही होता है, 1 + 1 तो यहां पर 1 हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा यहां पर अगर एक स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो P और Q स्टेटमेंट जो कंबाइंड स्टेटमेंट आएगी, कंपाउंड स्टेटमेंट, वो फॉल्स होगी। यहां पर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। यहां पर P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P और Q दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और जब दोनों ट्रू हैं P और Q, तो वो P और Q ट्रू होगी ही होगी। तो अब आप यहां पर देखिए, आप नोटेशन ट्रू फॉल्स के लिए T और F यूज कर सकते हैं, या बूलियन अलजेब्रा में 0 और 1 यूज कर सकते हैं, 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। याद करने के लिए आप ये याद रखेंगे कि यहां पर एडिशन की कंसेप्ट लेके चलनी है, एंड में मल्टीप्लीकेशन लेके चलना है, और इस तरह से आप वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट, इफ P देन Q, इसको डिनोट हम करते हैं इफ P देन Q। ओके, तो इफ देन है और इफ P देन Q, सो इट इज सेम एज P इंप्लाइज Q, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। दिस सिंबल स्टैंड फॉर इंप्लाइज, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। एग्जाम्पल देखिए,
कि ए नंबर ए मल्टीपल ऑफ 9 इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सो जो 9 का मल्टीपल है वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। सो पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट की सफिशिएंट है। सो पी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू। 3 की तरह भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, पी ओनली इफ क्यू। सो इसका मतलब ये हो गया कि ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ देखिए, क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। So this says that when a number is multiple of 9, it is necessary a multiple of 3. So you can say Q is a necessary condition for P. Or it is very important, negative of Q implies negative of P. तो ये आप याद रखिएगा, if P imply Q, then negative of Q will imply negate of P. So it is very important to note, if P then Q is equivalent to say that if not Q then not P। ओके, तो इस तरह के इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये याद रखना है। यहां पर सेकंड पे देखिएगा, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। तो इफ P देन Q को आप ये 5 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।